بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ پیش خدمت ہے میرے پیارے دوستو، یہ یمن کا شہر شبام ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب یہاں ایک نام سب سے زیادہ جانا جاتا تھا، ایک مشہور تاجر قاسم بن ابراہیم، جسے ابو التجار بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی زندگی کامیابی سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک دن اس کے لیے بہت خاص تھا جب وہ اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ تجارت پر بھیجنے والا تھا۔ صبح سویرے اس نے عبداللہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور 100 دینار دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج تمہارے سفر کی شروعات ہے۔ یہ صرف 100 دینار نہیں، یہ تمہاری زندگی کا پہلی آزمائش ہے۔ اس رقم کو عقل مندی سے خرچ کرنا اور ہمیشہ ایماندار رہنا۔ اس کا بیٹا جو دنیا دیکھنے کے شوق میں تھا، 100 دینار لے کر خوشی خوشی بازار کی طرف چل پڑا۔ یہ پہلی بار اتنے بڑے ہجوم کا حصہ بنا تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ اور دکان ہی دکانیں، ہر دکان پر اپنے مال کی تعریف کرنے والے دکاندار اور خریداروں کا ہجوم دیکھ کر وہ بہت پرجوش تھا۔ بازار میں کچھ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ نے ایک عجیب منظر دیکھا جس نے اس کے بڑھتے قدم وہیں روک دیے۔ ایک چوراہے پر کچھ لوگوں نے ایک مردہ جسم کو لٹکایا ہوا تھا اور وہ اس پر لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ حیران رہ گیا اور جلدی سے آگے بڑھا اور پوچھنے لگا، تم لوگ یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ ایک مردہ شخص کو کیوں مارتے ہو؟ وہ غصے سے چیخا۔ ایک بوڑھے شخص نے عبداللہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، یہ شخص ہمارا قرض دار تھا اور 100 دینار قرض ادا کرنے سے پہلے مر گیا۔ اب اس کا کوئی بالی وارث بھی نہیں۔ ہم اسے اس لیے مار رہے ہیں تاکہ آنے جانے والے لوگ رحم کھا کر کچھ رقم دے جائیں، یہاں تک کہ اس کا قرض پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اسے دفنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے فوراً کہا، اگر صرف 100 دینار کا مسئلہ ہے تو یہ لو، میرے 100 دینار رکھ لو اور اس بیچارے کو سکون سے دفنا دو۔ وہ سب لوگ حیران ہو کر عبداللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے فوراً لاش کو اتارا اور اسے دفنا دیا۔ عبداللہ دل میں عجیب سی تسلی لیے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے اپنے والد کو سارا قصہ سنایا۔ والد نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر مسکراتے ہوئے مزید 100 دینار عبداللہ کو تھما دیے۔ اس مرتبہ اس نے بازار جا کر مال خریدا اور ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ شہر سے باہر نکلا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر سفر کے دوران مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو کیا یہ قافلے والے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مجھے چھوڑ دیں گے؟ چنانچہ اس نے قافلے میں شامل ایک شخص کے پاس جا کر کہا، میرے بھائی کیا تم مجھے پانی کا ایک مٹکا دے سکتے ہو تاکہ میں قریب ایک تالاب سے پانی بھر کر لاؤں؟ قافلے والے نے فوراً اسے مٹکا تھما دیا۔ وہ پانی بھرنے کے بہانے ایک درخت کے سایہ تلے بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا کہ قافلہ اس کا انتظار کرتا ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ قافلہ آگے بڑھنے لگا اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تاجر کے بیٹے نے افسردگی سے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں کہیں پیچھے رہ جاؤں یا کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے کبھی یاد نہیں کریں گے، نہ ہی مجھے تلاش کریں گے۔ اس احساس نے اسے نا امید کر دیا اور وہ شہر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ قسمت کو ایک مرتبہ پھر آزماتا ہوں، شاید اگلا قافلہ بہتر ہو سکے۔ دوبارہ اپنا سامان تیار کیا اور ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن جلد ہی وہی ہوا جو اس کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ قافلہ اس کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا اور وہ پھر سے تنہا رہ گیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور حسب عادت پیچھے رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کی غیر موجودگی کو فوراً محسوس کیا۔ اسے اپنے ساتھ نہ پا کر قافلے والے رکے، اس کے بارے میں فکر مند ہوئے اور اسے تلاش کرنے کے لیے واپس لوٹے۔ جب وہ اسے تلاش کر کے واپس لائے تو تاجر کے بیٹے نے دل میں اطمینان سے کہا، یہ لوگ میرے سچے ساتھی ہیں اور میں ان پر ہر طرح سے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ قافلہ اب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ شام کا وقت ہوا اور وہ ایک سنسان مقام پر پہنچے۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور کھانے کی تیاری شروع کی۔ تبھی صحرا کی وسعتوں سے ایک نوجوان نمودار ہوا جس کے چہرے سے بہادری جھلک رہی تھی۔ وہ سیدھا تاجر کے بیٹے کے پاس آیا
اور बावकार अंदाज में उसके पास बैठ गया। उस नौजवान ने ताजिर के बेटे से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या मैं कुछ दिन इस काफिले में शामिल हो सकता हूँ? अब्दुल्ला ने भी हाँ में सर हिला दिया। वो नौजवान कहने लगा, अगर आप वाकई ताजिर हैं तो आपको एक खादिम की ज़रूरत होगी। ताजिर के बेटे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ वाकई, अगर तुम चाहो तो मेरे खादिम बन सकते हो, लेकिन तुम काम क्या कर सकते हो? काफिले के बाकी लोग यह तय कर चुके थे कि हर रात बारी बारी कोई एक शख्स काफिले की निगरानी करेगा ताकि बाकी सब आराम से सो सके। उस नौजवान ने एतमाद से कहा, हर रात की निगरानी का काम आप मुझे दे दो, मैं पहरे पर रहूँगा और वादा करता हूँ कि काफिले को वह हिफाजत मंजिल तक पहुँचा दूँगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जो भी करूँ तुम लोग मुझसे कोई सवाल न करना और न ही मेरे काम में मुदाखलत करना। ताजिर के बेटे और दिगर काफिले वालों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस नौजवान की खुद एतमाद और मजबूत लहजे ने उन्हें मुतमईन कर दिया। सब ने उसकी शर्त मान ली और यूं वह नौजवान काफिले में शामिल हो गया। अब वह सब एक नए अज़्म के साथ सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में हर रात जब काफिला सोने के लिए रुकता तो वह नौजवान खामोशी से पहरे पर खड़ा हो जाता और उसकी हिफाजत में काफिला सुकून से सो जाता। कई मरतबा उसने काफिले वालों को जंगली जानवरों से बचाया और ख़ुद को मुश्किल में डाला, लेकिन ताजिर के बेटे के दिल में अब भी यह सवाल गर्दिश कर रहा था कि यह नौजवान कौन है और इसने मुझसे ऐसा अजीब वादा क्यों लिया। एक रात उनका काफिला जंगल के करीब एक मुकाम पर रुका हुआ था। अब्दुल्लाह का नौजवान खादिम पहरे की जिम्मेदारी निभा रहा था कि अचानक उसे दूर से एक रोशनी नजर आई। यह रोशनी एक खेमे के इर्द गिर्द जलती हुई आग की थी। वह समझ गया कि यहाँ कोई खतरा है। उस नौजवान खादिम ने अपना काम खामोशी से शुरू किया। वह काफिले के बाकी अफराद को जगाने के बजाय खुफिया तौर पर वहाँ से दूर हुआ और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वह आग के करीब पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ डाकुओं का एक गिरोह बैठा हुआ था और वह बड़ी लूटमार का मंसूबा बना रहे थे। उसने जल्दी से कोई कदम उठाने के बजाय उनकी बातों को गौर से सुनने का फैसला किया। उसने देखा कि डाकुओं का सरदार उनसे बात कर रहा था कि वह अगले दिन काफिले पर हमला करेंगे और उन्हें लूट लेंगे। जब उसे यकीन हो गया कि वह काफिले के लिए खतरा बनने वाला है तो उसने दिल ही दिल में अपनी हिकमत अमली तैयार की। वह बिला झिझक आगे बढ़ा और उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। एक डाकू ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नौजवान खादिम ने बेखौफ से जवाब दिया, मैं भी एक चोर हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपने साथ शामिल कर लो। उन डाकुओं ने इसे एक लम्हे के लिए गुस्से से देखा, फिर अचानक कहकहा लगाया और कहने लगे, अच्छा अगर तुम वाकई चोर हो तो हमारे साथ मिलकर लूटमार करो, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। नौजवान खादिम ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, इस बेहाल काफिले को लूटने का कोई फ़ायदा नहीं, चलो किसी बड़ी जगह को लूटते हैं। डाकुओं ने पुरजोश होकर पूछा, कौन सी जगह? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम बादशाह के खजाने को लूट लें। मुझ में एक खूबी है कि मैं बड़ी से बड़ी दीवार को फौरन फलांग सकता हूँ। यह तजवीज़ सुनकर सब डाकू खुशी से उछल पड़े और फौरन इस मंसूबे पर अमल करने को तैयार हो गए। वो सब मिलकर शहर की तरफ रवाना हुए और रात की तारीकी में बादशाह के महल तक पहुंच गया। महल की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थी, लेकिन वो नौजवान एक छलाबे की तरह दीवार फलांग कर ऊपर चढ़ गया और एक रस्सी को उसकी तरफ फेंका। उसके पीछे पीछे तमाम डाकू ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगे। जैसे ही एक डाकू ऊपर पहुंचा, यह चुपके से उसको मार डालता। नीचे खड़े डाकुओं को कुछ मालूम नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है। एक एक करके सब डाकू ऊपर चढ़ते गए और सबका अंजाम वही हुआ। आखिर में डाकुओं का सरदार ऊपर पहुंचा और नौजवान खादिम ने उसे भी मार डाला। अब उसने तमाम लाशों को खजाने के कमरे में पहुंचा दिया। वह यह काम निहायत संजीदगी और खामोशी से कर रहा था, जैसे उसे किसी राज की हिफाजत करनी हो। इसी दौरान उसकी नज़र बादशाह के तख्त पर पड़ी, जहां एक खौफनाक सांप बैठा था। उसने बगैर देर किए अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में सांप का खात्मा कर दिया। खजाने की यह कामयाब हिफाजत करने के बाद वह दीवार से नीचे उतरा और बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। जब वह बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि बादशाह गहरी नींद में सो रहा है। उसने कमरे का सामान उलट पलट दिया और बादशाह की एक टांग पर एक निशान बनाया ताकि यह साबित कर सके कि वह यहाँ आया था। फिर जल्दी से बाहर निकल गया। तमाम काम अंजाम देने के बाद वह खामोशी से काफिले की तरफ वापस लौट गया और देखा कि काफिले वाले अभी तक सो रहे थे। उधर जब बादशाह जगा तो उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई आया था। उसने फौरन अपने वजीर को बुलाया और कहने लगा, मुझे शक है रात को मेरे कमरे में कोई आया था।
क्योंकि कमरे का सामान बिखरा हुआ है। वजीर कहने लगा, हुजूर मेरे पास भी एक अहम खबर है। खजाने के कमरे में कुछ आदमियों की लाशें हैं जो बज़ाहिर चोर मालूम होते हैं, और तख्त पर एक मरा हुआ सांप भी पड़ा है। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत अजीब वाक़यात है, लेकिन सुनो, किसी को इनकी तफसील की खबर ना होने दो। फिर अगले दिन बादशाह ने शहर में ऐलान करवाया कि जो कोई बता सकेगा कि गुजरता रात में और दरबार में क्या हुआ है, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर कई लोग आए और अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहे, लेकिन बादशाह मुतमईन न हुआ। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी हकीकत न बता सका। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया और वजीर ने बताया कि शहर के करीब ताजिर का एक काफिला है, हो सकता है वो कुछ जानते हो। जब बादशाह के कासिर काफिले तक पहुंचा तो सबने यही बताया कि उन्हें इस वाक़या से मुताल्लिक़ कोई इल्म नहीं। उसी वक्त अब्दुल्लाह का नौजवान खादिम आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरे मालिक इस बारे में सब कुछ जानता है। अब्दुल्ला हक्का बक्का रह गया और अपने खादिम की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन उसने चुपके से कहा, अपना वादा मत भूलें, मैं जो कहूँगा आपने मानना है और सवाल नहीं करना। बादशाह के कासिदों ने ताजिर के बेटे को दरबार आने की दरख्वास्त की, लेकिन वह जाने के लिए राजी न हुआ। तब उसका खादिम बोला, मालिक हमें बादशाह की अताअत करनी चाहिए। और यह सुनकर ताजिर के बेटे ने अपने खादिम की बात मान ली और दोनों बादशाह के दरबार पहुंच गए। जब वह बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उसने फौरन उनसे पूछा, बताओ तुम लोगों ने रात को क्या देखा? नौजवान खादिम बोला, हुजूर मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे मालिक यहाँ मौजूद थे और उन्होंने सब कुछ देखा और एक एक बात मुझे बताई। बादशाह कहने लगा, जल्दी बताओ उस रात क्या हुआ था? नौजवान खादिम ने पूरी कहानी सुना दी और बादशाह को बताया कि आपकी टांग पर एक निशान भी बनाया गया था। बादशाह ने जब अपनी टांग देखी तो निशान मौजूद था। उसे उनकी सच्चाई का यकीन हो गया और कहने लगा, तुमने सांप और डाकुओं को मार डाला, यूं मेरी जिंदगी और खजाने की हिफाजत की। मांगो तुम दोनों क्या इनाम मांगते हो? नौजवान खादिम ने आजिज़ी से जवाब दिया, हुजूर मैं नहीं, मेरा मालिक इनाम का हकदार है। फिर बादशाह ने ताजिर के बेटे को सोने और ज़वाहरात से भरा संदूक इनाम में दिया। जब वह बादशाह से इनाम लेकर वापस लौट रहे थे तो अब्दुल्ला बहुत हैरान था और सोच रहा था कि यह सब क्या है। इस नौजवान खादिम ने हर मौके पर मेरी हिफाजत की और अब मुझे इतनी बड़ी दौलत का मालिक बना दिया। यह कौन है, कहाँ से आया है और इसकी शनाख्त क्या है? उसने बिल आखिर खादिम से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तो कुछ भी न जानता था। तुम कौन हो और इतने दिनों से मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अब्दुल्ला के खादिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कुछ अरसा पहले तुमने एक कर्ज अदा किया था, आज मैंने तुम्हारा वह कर्ज चुका दिया, लेकिन अब मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है और मुझे वापस जाना है। यह कहते हुए वह खादिम जिस तेज़ी के साथ पहली दफ़ा नमूदार हुआ था, उसी तेज़ी से वापस पलटा और अब्दुल्ला की नज़रों से ओझल हो गया। ताजिर का बेटा हैरत में डूबा रह गया और इस वाक़या ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। वह कभी यह न जान सका कि वह खादिम हकीकत में कौन था। क्या वह उसी लाश का साया था, एक इंसान था, या खुदा की भेजी गई मदद? हकीकत जो भी थी, लेकिन अब्दुल्ला यह बात समझ चुका था कि इंसान की बेलोस नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती और अच्छे आमाल का बदला हमेशा किसी न किसी सूरत वापस लौट कर आता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।